और यहाँ पर आ चुकी है क्राउड फेवरेट कैरी, एग्जिस्टेंस, मावी एंड संधू। ये 4 प्लेयर्स जहां पर भी जाते हैं धूम मचाकर आते हैं। तो मेरा एंड आपसे सवाल रहेगा कि आपकी जर्नी ओआर से पहले क्या क्या चीज की थी, कौन सी टीम्स में आप थे, और वहां से ओआर तक जब आप आए तो किस तरीके से आपका गेम प्ले और सब कुछ चेंज होता रहा? When I first installed this PUBG Mobile, so during that time I was not interested in the game. But later, after few days, like I started getting towards it, and I started spending more time in it. So what happened is कि like I lied to my parents that I can't stay in my home. I'll go and rent a flat near my college. So later we rented a flat near my college, and I lied to my parents that I stay there and study. But whole semester I didn't study, and I wasted one full semester there. So later my teachers, they started calling my parents, and it became a issue. So later it was still going on, but I still didn't give up on the game. So later I came to know that there is something in this game. So I guess last March, there was an event in Chennai. It was a LAN event. That was my first event, and that was a LAN event. So I directly went and played there, and we came first, I guess. We came first there. We won the championship trophy. It's Sky Sports Championship 1.0, I guess. So we won that. So later then I came to know like this has something to do with me. So it went on, and one day I was playing this zombie mode, and Karthik and Crompton approached me. So they were like, they need a player for Godel. They used to see my videos, and because of that they approached me. Actually, Crompton is the one who really gave me chance to perform in the stage. So that was the first time I entered PMCO, I guess, last PMCO Spring Split, I guess. So I performed there, and after that, so one day like scouts started seeing my gameplay. So he was like, this guy can play good. He started racing. Then he approached Mavi, and he suggested me to Mavi. So later one day Mavi texted me, and he just asked like, do you wanna join? Then I said like, I had 2 to 3 options there. During the last PMCO time, I had 2 to 3 options to join, but I don't know, like I actually didn't go for the best place. I just wanted to like a person to monitor me, who can take up the entire game. So I thought Mavi will be the best person. So that is where my journey started, and now it's still going on good. So and तो तुम्हारे प्लेइंग 4 में और कोच में सबसे ज्यादा लड़कियों से बात कौन करता है? Mavi. अच्छा, ये क्या पूछने के क्वेश्चन होते हैं? ये देख आ गया मावी आ गया अभी बूट कैंप में थे बहुत सारे लोग, और जो नहीं थे उनको ऑब्वियसली पता ही रहेगा। सबसे ज्यादा तंग कौन करता है गेम के अंदर, गेम खेलते हुए या कुछ भी? सबसे पहले गिल, आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस, सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? एक नाम। मावी कौन तंग करता है? गिल। मेरे को कोई तंग नहीं कर सकता। Damn, it feels good to be a gangster. I would go to Gil, then I would go to Viru, because Gil, I still remember, if you also remember 8-bit का पार्ट था पहले, जब हम लोग PMIT वगैरह के मैचेस कर रहे हैं, तब मैंने आपको कास्ट किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग उस टाइम कास्ट करते देखा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, आपकी ओवरऑल जर्नी उससे पहले से अभी तक ओआर तक कैसी रही है? कौन सी टीम्स का आप पार्ट थे, और वहां से ऑरेंज रॉक तक आपका क्या जर्नी रहा है? मैं लाइक सब चीज जानना चाहूंगा। मैं पहले ऐसे नॉर्मल मैचेस खेलता था, देन मेरी गोल्डी भाई से बात हुई, गोल्डी भाई बोले कि हम PMIT खेलते हैं। देन मैंने उनके साथ खेल के 8-bit के साथ खेल के PMIT के लिए क्वालिफाई करा। PMIT मेरा अच्छा गया। देन उसके बाद मैं और टीम्स के साथ प्रैक्टिस करने लगा। देन मेरे पास कैरी आया, एंड वो बोला कि हम साथ में टीम बनाते हैं। तो देन हमने गोल्ड लाइक बनाया, जैसे सब आपको पता है। देन गोल्ड लाइक के बाद मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा एग्रेशन से खेलना चाहिए, एंड मेरे को थोड़ी एग्रेसिव टीम चाहिए। देन मैंने ऑरेंज रॉक से खेला वर्ल्ड लीग। अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ऑरेंज रॉक में आने से पहले आपकी क्या जर्नी रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द क्लासिक मैचेस टू कॉम्पिटिटिव जर्नी? आपका क्या पूरा शुरू से बोलूं क्या? तो सबसे पहले मैंने खुद का क्लैन, मतलब एक क्लैन था मेरे फ्रेंड्स का, मैंने वो ज्वाइन किया था ZFX इवोल्यूशन करके। फिर उससे हम फर्स्ट PMCO के लिए क्वालिफाई हुए, फिर PMCO खेले, फिर बाद में PMCO में हम सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाए। तो फिर मेरे को घातक ने बोला था कि अगर तेरे को टीम में आना है 5th प्लेयर बनना पड़ेगा। पर फिर बाद में
मेरा यूनिवर्सिटी के साथ अच्छा था। फिर हम लोग PMIT खेले, फिर बाद में NTT के बाद में 7 सीज में गया मैं। 7 सीज में मतलब खुद की टीम बनाई। फिर खुद की टीम बनाने के बाद में पहला टूर्नामेंट खेले, वो बहुत ख़राब गया था, #16 आए थे उसमें। फिर बाद में PMCO, तो PMCO हमारा बहुत अच्छा गया था शुरू में, पर बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई और फाइनल्स में हम 11th पर आ गए, तो PMPL क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर बाद में सारे टीममेट्स ने टीम छोड़ दी, तो फिर टीम टूट गई। फिर बाद में मैं ऐसे ही खेलता था, फिर मेरे को एंटो ने बुलाया, एंटो के साथ खेला। फिर मेरे को एंटो ने बोला कि ओवर में खेलेगा क्या, फिर मैं फिर ओवर के साथ खेला। फिर काफी सही। अब मावी से करते हैं, मावी से आ जाएगा अच्छा खासा। मावी हो गया ना मेरा? हाँ मावी मावी बाय बाय। मावी। So Mavi, I would like to ask you right from the start. Obviously, आप Orange Rock के साथ तब से हो जब से Orange Rock नाम रहा है। आप one of the oldest players in the organization रहे हो। बट उससे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा। Orange Rock से पहले आप किस टीम का हिस्सा थे और वहां से Orange Rock में आप कैसे आए, वो सारी चीज। हम लोग किंग्स नाम का हमारा क्लैन होता था, उसमें हम सारे स्कूल फ्रेंड्स इकट्ठे होकर क्लासिक खेलते थे और हम 3-4 जो भी फ्रेंड थे, मतलब पूरा मतलब उस टाइम क्लासिक भी हम पूरा डेडिकेशन से खेलते थे, मतलब पूरा अच्छे से खेलते थे। तो वो खेलने के बाद जब हम दोस्त अलग हुए, मतलब सब अपने अपनी स्टडी करना चालू किए, तो गेम छोड़ना पड़ा हमको। तो लाइक मेरे पास टाइम था तो मैं गेम खेलता रहता था। तो मैंने ना उस टाइम पेड कस्टम्स खेलना शुरू किया मार्च, और कुछ ऐसा टाइम था जब PMCO स्टार्ट हुआ था, वो ग्रुप से स्टार्ट होने वाले थे जी। तो उस टाइम में मैं गेम छोड़ने वाला था। लाइक मैं ना गेम से बोर हो गया था कि बहुत खेल लिया। तो मन में आया कि हाँ इतना सारा प्राइस पूल है, तो देखा था कि एक पहले टीम 30-35 लाख इकट्ठे जीत रही है एक टूर्नामेंट से, तो सोचा कि जाते जाते खुद पार्ट ले लेते हैं, कुछ नहीं भी बनेगा तो 20-25 हज़ार लेके टेंडर्स अवार्ड लेके ना निकलेंगे वहाँ से। तो वो करने के बाद उस टाइम हम लोगों ने टीम बनाई। सैम मेरा ऐसे इंडियन दोस्त था, क्लासिक फ्रेंड था। तो लाइक PMCO में हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा गया था, तो हम 3rd आए थे। तो पता नहीं ऑरेंज रॉक में क्या देखा कि उन्होंने हमें परफॉर्मेंस से जज करके हम लोगों को इनविटेशन दे दी था। मैनेजर का कॉल आ गया था मुझे। So that's a good one. And मैं आपसे जानना चाहूंगा, obviously आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे हो और बहुत ज्यादा टाइम से रहे हो आप। obviously ऑरेंज रॉक में वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आने में और अपना फ्री खेलने में क्या क्या डिफरेंसेस आपको लगे हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब जलप हो जाते हैं इतने टाइम तक, तो इसके बाद किस तरीके की जर्नी आगे जाती है एक प्लेयर की? देखो पहले तो सिंपल सी बात, बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना कुछ कमाए या बिना पैसों के ना तो घर वाले खेलने देते हैं, ना ही खुद का ज्यादा देर मन करता है खेलने का। तो लाइक अगर तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो तो तुम्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है जो तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिए इनफ होता है। हर बंदा एक काम तभी करता है जब वो जब उसको उसका वर्थ मिल रहा हो। तो लाइक मेरे हिसाब से जो भी प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं वो बेटर रहते हैं सोलो खेलने से अच्छा। तो देख, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आगे ग्रो करना चाहते हो या आप एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ देखना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी या कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका नाम ऊपर हो। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली आप खुद भी ग्रो करोगे। तो अगर आप देखना चाहोगे, अगर जिसको मेरा पास पता है, तो लाइक मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पास से लेके अभी तक कुछ ऐसा, तो देखो नंबर्स में तो जरूर चेंज आया है, लेकिन मतलब गेम प्ले एंड माइंडसेट में कोई चेंज नहीं है। जो मैं पहले दिन था ऑरेंज रॉक में ज्वाइन करते वही मेरा माइंडसेट आ गया। गेम प्ले भी वही था, गेम प्ले आज भी वही है, बस टीममेट्स के अकॉर्डिंग और टीम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करना पड़ता है, पैसे वगैरह से वो तो टाइम टू टाइम बात होती है। देखो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो बहुत ही काम है, बहुत ही मोटिवेशन देते हैं, मतलब बहुत ही मोटिवेशनल है। तो लाइक उनकी तरफ से तो आज तक हमें कोई इशू नहीं आया। तो मेन पॉइंट तो बंदे की 70 से 80% स्ट्रेस तो ये खत्म हो जाता है कि मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई मतलब कोई भी इशू नहीं होने देंगे वो लोग हमें किसी भी तरह का, कोई भी फाइनेंशियली या कुछ भी। तो लाइक हम लोगों ने स्टार्ट देखो उन्होंने भी हमें कुछ देख के ही हम पे इन्वेस्ट किया था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग की टीम से ही अच्छा परफॉर्म करना चालू किया था। तो लाइक आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन को भी सेम स्टेबल ग्रोथ ही हो रही है, मतलब जो उनको पहले दिन से मिलती आ रही है और अभी तक से। लाइक उनको कभी हम लोगों ने ये फील नहीं होने दिया कि हाँ अब हम नीचे गिरने वाले हैं, हम दोबारा कदम उठा रहे हैं।
जी, हमने मावी के POVs बहुत बार सुने हैं, मावी के पर्सपेक्टिव्स बहुत बार जाने हैं, बट एज एन ऑरेंज रॉक पर्सन कोई ऐसा मैसेज है जो 1 साल पूरे होने पर ऑरेंज रॉक की आप देना चाहेंगे ऑरेंज रॉक की ऑडियंस को, नॉट जस्ट मावी की ऑडियंस बट पूरी ऑरेंज रॉक कम्युनिटी की ऑडियंस को? देखो, आप लोगों ने मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया और ऑडियंस ने भी मेरे को मेरी उम्मीद से ज्यादा सपोर्ट किया है। तो मैं यही कहूँगा, जैसे आप लोग हमें सपोर्ट करते आए हो वैसे ही करते रहो, और हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट देते रहेंगे और आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने देंगे। So, ladies and gentlemen, boys and girls, for today we have a very special guest out here with you from Orange Rock's team, if I have to take it that way, because this guy was always the backbone for the team, a person who was a scout for the team, who had to scout out the players, who was managing the players, and who was coach for the players from the start of Orange Rock. I'm very much overwhelmed to have Rippy with me for this interview. So first of all, Rippy, welcome to this interview out here, and for the first time we are watching you. How are you feeling? I'm feeling great. थोड़ा weird होगा पर ठीक है, मैं ट्राई करूंगा अच्छे से जवाब देने। Because Orange Rock का 1 year हुआ है, and Orange Rock is still, I would say, I mean, it's doing really good, but it's still on its baby steps, because अभी हमें obviously और आगे जाना है और बहुत चीजें सीखनी है। So आप आने वाला 1 साल हो चुका है, but आप आने वाला जो अगला 1 साल रहेगा वहाँ पर Orange Rock की जर्नी आप किस तरीके से देखते हैं? Like, what's your future for Orange Rock? We have only one goal to become best team in the world. That is, so it's there, and we are trying to achieve that goal. जब भी हम लोग start किए, हम लोग like 10 steps पीछे थे, अभी 5 steps पीछे, half तो achieve कर लिए PMWL में और half बाकी है। जिधर चाइनीज टीम्स और साउथ ईस्ट एशिया टीम्स भी रहते ना, तभी अगर हम लोग टॉप 3 में अगर हम लोग प्लेस हुए ग्लोबल चैंपियनशिप में, आई थिंक दैट इज द टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, टू बिकम प्लेस टॉप 3 इन द ग्लोबल चैंपियनशिप। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी मेहनत क्या रहती है? एक मैनेजर का काम क्या रहता है? जैसे आपने प्लेयर्स का बताया, बट देन जो टूर्नामेंट्स होते हैं, छोटे मोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, वहाँ पर टीम्स को रेडी करना, अपने प्लेयर्स को रेडी करना, हाउ डू यू मैनेज दैट? क्योंकि अब जैसे आपको सब प्लेयर्स को कॉल करके बुलाना होता है, कुछ भी करना होता है, कैसे सबको कॉल करना, मैसेजिंग वगैरह, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ ठीक है, वो मैनेजर का काम, वो फ्लो हो जाता है। पर टफेस्ट पार्ट क्या है आज बीइंग अ मैनेजर, जब भी प्लेयर्स थोड़ा बैड गेम में हार जाते, कभी कभी एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, झगड़ा करते, तब भी टीम को काम करना और मोटिवेटिंग वर्ड्स देना। वो मोटिवेटिंग वर्ड्स बोलने के बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ खेलने के लिए रेडी भी नहीं रहते। थोड़े इंस्टेंसेस भी है कि मैच के बीच में मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा बोल के उठ भी चले जाते हैं, पर वो लोग को मैनेज करना और वो लोग को एक काम माइंड में वो लोग को मोटिवेट करना, एट द सेम टाइम टॉक्सिसिटी कम करना, वो थोड़ा मुश्किल, दैट इज द टफेस्ट पार्ट बीइंग अ मैनेजर। अब जैसे प्लेयर्स से उनके पर्सपेक्टिव सुनते हैं, प्लेयर्स को अगर बोला जाता है कि आपको अपने फैंस को कुछ बोलना हो एंड सब कुछ, आपको अगर ऑरेंज रॉक की टीम की तरफ से कुछ बोलना, जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे उनके लिए अगर आपको कुछ बोलना हो, व्हाट रिपी एज अ मैनेजर सीज फॉर हिज फैंस? फैंस तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे ऑरेंज रॉक के लिए। हम लोग के बैड टाइम्स में भी, गुड टाइम्स में भी वो लोग बहुत सपोर्टिव थे। दे वर सपोर्टिंग देयर प्लेयर्स, दे वांट India to win. They want Orange Rock to represent India at the highest level. I love that from players. They never negativity हर जगह रहती है, पर negativity से ज़्यादा support ज़्यादा है हम लोग को। तो I'm very happy, और Orange Rock फॉर्म होते 1 year भी हो गया है और fan following भी बढ़ गया है, और everyone wants to see Orange Rock on the top level at international stage. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारा बेस्ट देने के लिए। आलू डालो सोना निकालो।